Hello dear students, good morning to all of you. Today we will discuss our next chapter of biology. Okay, our two chapters of chemistry is still remaining, but we will discuss it after some time. Okay, but now we will discuss some interesting chapters about biology. Okay, it is a unit 2 world of living. ठीक है, जो जितने भी जीव जंतु हो, जीवित जीव से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, ठीक है, उनका जो वर्ल्ड है उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इन चैप्टर 6 फर्स्ट लाइफ प्रोसेस. ओके, लाइफ प्रोसेसेस. इन दिस चैप्टर वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टॉपिक. न्यूट्रिशन, ठीक है, जो हम लोग खाना खाते हैं, वी टेकन फूड्स, ठीक है, वी टेकिंग फूड्स एंड मेनी अदर लिविंग organisms taking foods. According to this we can study in this nutrition. Okay, and then after respiration means that you know that breathing of oxygen, ठीक है, taking oxygen and expelled carbon dioxide in the human, and also this thing is happening plants also, ठीक है, we can discuss it after some time in respiration chapter. In this circulation and transportation, okay, we are taking foods, waters and air or oxygens and expelled carbon dioxide. So how these things happen we can study in circulation and transportation, ठीक है. And last one is excretion means that we know that we are doing daily life processes in the early morning, ठीक है, we excrete some wastage from our body, ठीक है, बॉडी में जो भी वेस्टेज चीजें होती हैं we can excrete it by through the many processes, ठीक है, by through the many, we can discuss it in the excretion chapter. Okay, so let's see first one is nutrition. न्यूट्रिशन सिंपली आहार, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, आहार बोलते हैं, ठीक है. एंड एवरी लिविंग थिंग्स टेक अ न्यूट्रिशन. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग? दिस इज द फर्स्ट, ठीक है, थिंग. द डिफरेंस इज मैनी डिफरेंसेस बिटवीन फर्स्ट वन, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू टेक अ फूड for their life processes, for growth, for energy, for many life processes inside of the body. Okay, so this is the first, ठीक है, food. And also we required many actually मैं आपको ये बता रहा हूँ, there is differences. Okay, first difference, living और non living में क्या होता है, living things taken foods, non living things are not taken food. Okay, and living thing are move. Okay, but sometimes the just like plants are not moved, that means this is also a living thing, but this is not good facts about the living thing. ठीक है, कि living thing मतलब ये होते हैं कि जो move नहीं करते वो non living thing होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है. plants भी एक non living thing है, but they are not moved, तो ये भी एक differences है, ठीक है. And living thing processes are when you move anywhere, so you need a energy, and at the time there is a life processes, body maintenance of the body is also done. Okay, and these things is happen. Okay, so this is called life processes. Okay, I will tell you something more in our chapter. Okay, nutrition, what is life process is our chapter. So what is life processes? Okay, life processes, that means there is something more. All living things perform certain life processes, ठीक है. हमारे लाइफ में we are in our daily routine, there is a lots of things we do daily. Okay, daily basis पे हम क्या करते हैं, respiration every time, when we moving, when we sleeping, when we running, every time we respired. Okay, respiration, and it is a process in which it is a very complicated process in our body. ठीक है, एक बॉडी के अंदर में कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. डाइजेशन, वी टेक फूड, ठीक है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड डाइजेस्ट इट.
ठीक है, और क्या करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट इट्स सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन इन ऑल द बॉडी पार्ट्स, एनर्जी सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इन अवर बॉडी पार्ट्स, इन अवर हार्ट, in our daily in our all the body organs, okay, circulation, that is circulation. And excretion, excretion that means ki the wastage part, ठीक है, wastage material from the body which is moving outside, which is excreted outside, ठीक है, that is known as excretion. excretion का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है, जो and after that we growth of our cells, ठीक है, and growth of our size, growth of our weight and many things, ठीक है, and reproduction, that means we are reproduce same types of living organisms in our living things, that is known as reproduction, etc. okay, so these are known as life processes, ठीक है, you can do it ऐसा, आप चाहे तो आप इसको एक हेडिंग की तरह लिख सकते हैं, लाइफ प्रोसेस, और उसके बाद फिर इसको ओके, तो दिस आर दी लाइफ प्रोसेसेस। लाइन बना करके आप इसको चाहे तो बना सकते हैं इसको, ठीक है, अपने एक टाइमलाइंस के थ्रू फॉर सॉल्विंग फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, दिस आर द प्रोसेसेस, ठीक है। सो व्हाट इज द definition of life processes? The basic definition of life processes is the basic functions performed by living organisms, ठीक है, जितने भी living organisms होते हैं, ठीक है, आप चाहे कोई भी living organisms ले लें, चाहे वो one cell single cell living organisms or multicellular living organisms, they perform some life processes for their survival, for their body maintenance, ठीक है, body maintenance मतलब we required every day something for our body maintenance, ठीक है, body maintenance मतलब क्या होता है, we when we getting bound anywhere, ठीक है, in our body, कहीं भी हमें चोट लग जाती है, wounds, ठीक है, और बोल सकते हैं कि body maintenance just like the thing in which required maintenance of the body every day, ठीक है, तो that is known as body maintenance, are called life processes, ठीक है, तो this body maintenance is done by through these processes, okay, when we take on food we get a blood circulation in your body and after that our immunities of the body is increased and our body is infected manywhere, ठीक है, तो at the time it is also required maintenance, ठीक है, तो अपने बॉडी को खराब होने के बाद ठीक करना या ओके, तो these are called life processes, okay dear student, energy required to carry out different life processes, ठीक है, before this we are already studied about the base life processes, ठीक है, basic life processes, it is obtained कार्बन बेस्ड फूड सोर्सेस थ्रू न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब जो फूड हम लोग लेते हैं, ठीक है, दैट फूड कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर आवर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी एंड लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, एंड दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बन बेस्ड फूड सोर्सेस, ठीक है, कार्बन बेस्ड फूड सोर्सेस, दिस आर द आउट सोर्सेस, ठीक है, आउट फ्रॉम द बॉडी, एंड कार्बन बेस्ड सोर्स फूड सोर्सेस मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिनको जलाने से वो ब्लैक कलर देती है, ठीक है, ब्लैक कलर मतलब कार्बन के फॉर्म में चेंज आते हैं, दीज आर कॉल्ड कार्बन बेस्ड चीजें विच इज आवर बॉडी एक्सेप्टेड मोस्टली, ओके, तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो फूड होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं को ही बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, बाय थ्रू अवर लाइफ प्रोसेसेस इज विल बी गोइंग ऑन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, चलती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, किस टाइप्स के जो न्यूट्रिशंस होते हैं, कैसे न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, उनको अकॉर्डिंग न्यूट्रिशंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज द हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन, ओके, एंड ओके, नाउ what are autotrophs? Autotrophs can prepare their own food from simple inorganic sources, just like carbon dioxide,
वाटर, ठीक है, जो केमिकल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, केमिकली फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ओके। तो दीज आर टेकन बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स as their food. So these types of living organisms are called autotrophs, ठीक है। तो these types of living organisms are green plants, some bacteria, they can make their food by their self. तो these are called autotrophs, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं 7th क्लास में, ओके। तो these are called autotrophs. इनके बारे में एक्सप्लेनेशन में इनके बारे से क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफ्स के बारे में एंड हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में बोथ का, ठीक है। एंड नाउ हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इन विच हेटेरोट्रॉफ्स दे आर डिपेंडिंग ऑन द टोटली ऑन द ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। जो ऑटोट्रॉफ्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उन पे डिपेंड्स होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। एंड दे कैन नॉट सिंथेसाइज का मतलब होता है ये अपने सेल्फ से फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। इन ऑटोट्रॉफ्स दे कैन सिंथेसाइज, ठीक है, देयर ऑन फूड, ठीक है। जस्ट लाइक प्लांट को लेते हैं, प्लांट मेक ग्लूकोज, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, बट इन विच दे आर नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ठीक है। मतलब ये अपने फूड प्रिपेयर खुद से नहीं करता, ठीक है। सिंथेसाइज इसी को बोलते हैं प्रिपरेशन, सिंथेसाइजेशन, ठीक है। दे आर ऑन फूड एंड डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉफ्स फॉर ऑब्टेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है, द सब्सटेंस विच इज टेकन एज अ फॉर द फूड, है ना। जो लोग ग्रीन लीव्स लेते हैं, ठीक है, somebody's are taken food as a hen, ठीक है, मुर्गी, और मीट्स, ठीक है, और some green vegetables, these are called nutrition in organic substance for nutrition, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेस। तो इनके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। These are animals, human, okay. Now autotrophic nutrition in plants, ठीक है। तो जो plants होते हैं, how they prepare, how they synthesize their foods, okay. तो they synthesize their food by the process of photosynthesis, ठीक है। Photosynthesis in the presence of sunlight and by the help of chlorophyll, okay. And also they required carbon dioxide and H2O, ठीक है। तो according to this green plants manufacture their food by the process of photosynthesis, ठीक है। जो फूड्स, जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, बनाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। हियर दे यूटिलाइज, ठीक है, यहाँ पे ये कौन कौन सी चीजों का यूज करते हैं, दे यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O in the presence of sunlight with the help of chlorophyll, ठीक है। कहने का मतलब ये है, डायरेक्टली आप इस इक्वेशंस को याद कर लो, ठीक है। इस इक्वेशन इस केमिकल रिएक्शन को आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो दैट मींस यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय वेरी इजीली, ओके। तो एट दैट टाइम दे convert sunlight in the form of chemical energy, okay. They convert sunlight as in the form of chemical energy and they release oxygen, ठीक है, ऑक्सीजन जो रिलीज कर रहे हैं, and they prepare carbohydrate that is known as glucose, C6H12O6, ठीक है। they can prepare that is known as carbohydrate which is the energy of the plants, ठीक है, which can be required, they can used in the all parts of the energy, all parts of the plants, ठीक है। and when these are not used and they are excessive in the form, तो that can be said to be as a starch, ठीक है। जब ये ज्यादा फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब जमा हो जाते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, these are called starch when carbohydrates in the form of excessive form of carbohydrates, so that is known as starch, okay. तो storage of future use of carbohydrates
when required by the plants, that is known as starch. And let's see for the process of photosynthesis. And now here process of photosynthesis in plants. Okay, here is a cross section of leaf. The leaf are the organ which is taken sunlight on them, ठीक है, and prepare food and transfer of energy to all the parts of the plants in the plants. Okay, so let's see how this thing is happen. Okay, this thing is happen by through the leaf. Leaf is the whole parts and upper the big parts of the leaf is called lamina or leaf blade. ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, एंड हियर इज अ मिड रिब. मिड रिब्स क्या होते हैं, इट इज, इसको बोल सकते हैं ये एक बड़ी नस है किसकी, इन द लीफ. ओके, एंड हियर इज अ इट इज बोल सकते हैं बिग विंग एंड इट इज अ स्मॉल विंग. ठीक है, स्मॉल विंग इज बाय कनेक्टेड विद द मिड रिब्स. ओके, मिड रिब से कनेक्टेड होते हैं. इनके थ्रू जो भी एनर्जी या फिर नाइट्रोजन, मिनरल्स एंड जो भी चीजें पहुंचानी होती है, ठीक है, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय थ्रू द जाइलम. ठीक है, जाइलम क्या करता है, जाइलम इज टेकन मिनरल्स, नाइट्रोजन एंड अदर कंपाउंड्स, ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम फ्रॉम द रूट और फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसफर इट टू द ऑल द पार्ट्स वेयर इट इज रिक्वायर्ड. एंड फ्लोएम इज अ थिंग. ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है ऑल द प्लांट्स में. ठीक है, बाय थ्रू द मिड रिब. ठीक है, एंड बोथ आर टुगेदर कॉल्ड वेस्कुलर बंडल. ठीक है, इनको दोनों एक साथ को क्या बोला जाता है, इनको वेस्कुलर बंडल बोला जाता है. ठीक है, एंड दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. ठीक है, लीफ का जो सबसे अपर पार्ट होता है दैट इज नोन एज अपर एपिडर्मिस. ठीक है, एंड इसके ऊपर क्या होता है, वैक्सी कोटिंग होता है. ठीक है, इस वैक्सी कोटिंग क्या करती है, इट इज प्रिवेंट टू द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ. एंड उसके नीचे वैक्सी कोटिंग के जस्ट नीचे क्या होता है, अपर एपिडर्मिस होती है. ठीक है, तो सनलाइट जो होती है, ठीक है, डायरेक्टली एंटरिंग ऑन देम. ठीक है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज एंटरिंग ऑन देम. ठीक है, एंड इन अपर एपिडर्मिस देयर इज अ लेस क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लेस इन विच क्लोरोफिल इज स्टोर्ड. ठीक है, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, स्टोर्ड होता है. ठीक है, एंड व्हेन द क्लोरोफिल नीचे आते जाते हैं. ठीक है, एंड देयर इज अ स्ट्रक्चर दैट स्टोर्ड अ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, इसमें ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे बने होते हैं. ठीक है, ये होते हैं क्या, आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं. इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फिल्ड होता है क्लोरोफिल. ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, सनलाइट यहाँ पे एंटर करती है, यहाँ से एंटर करने के बाद इनमें वो प्रोसेस्ड होने लगे, मतलब कि ये कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, ये इसके पार्ट को देख रहे हैं, इसके ऊपर पार्ट जो है वो वैक्सी लीफ है और इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो वाला लोअर एपिडर्मिस होता है. ठीक है, तो इस वाले अपर एपिडर्मिस में क्या होता है, लेस क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एंड लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, देयर इज अ हाई, मतलब कि देयर इज अ मच क्लोरोप्लास्ट एज कंपेयर टू द अपर एपिडर्मिस. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, इट इज स्टोरेज ऑफ द क्लोरोफिल. ओके, एंड इट हैविंग अ गार्ड सेल, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. ठीक है, स्टोमेटा में. ठीक है, ओके, दिस स्टोमेटा, दिस इज अ टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ द लिप्स. ठीक है, जो पत्तियां होती है उनके अपर सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. जैसे हमारे बॉडी पे टाइनी पोर्स इन आवर बॉडी आल्सो. ठीक है, विच इज एक्सक्रेशन फॉर द, क्या करता है, एक्सक्रेशन करता है. ठीक है, फॉर द वेस्टेज मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. ठीक है, जिसको हम लोग पसीना भी बोलते हैं. एंड वैसे ही क्या होता है, इन अ लीफ देयर इज आल्सो टाइनी पोर दैट इज नोन एज स्टोमेटा. ठीक है, तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज. ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करता है. ठीक है, एंड थ्रू स्टोमेटा, एंड a large amount of water loss is also done from the stomata. ठीक है, when
वाटर इज want to going outside, ठीक है, जब वाटर्स को बाहर निकलना होता है, देन द गार्ड सेल इज स्वेल, ठीक है, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग दैट मींस दीज आर श्रिंक, तो यहाँ पे स्वेल हो गए, ओपन हो, एंड दीज आर एट द टाइम स्वेल, ठीक है। एंड हियर इज अ प्रेजेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यहाँ पर ही प्रेजेंट को, जिससे पहले वाले क्रॉस सेक्शन में देखा था, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर था वो यही वाले स्ट्रक्चर्स थे आपके, ठीक है, यही होते हैं आपकी क्या, स्टोमेटा होते हैं। एंड देन हियर इज अ गार्ड सेल्स, ठीक है, ये जो साइड साइड पे बने हुए हैं, दीज आर नोन एज गार्ड सेल, एंड फाइनली दीज आर एंड। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।